Hello everyone, my name is CS Shalaka Sharma and this is the third video on lesson number 1 of Reserve Bank of India Act. So this first chapter of economic, business and commercial laws has been divided in three parts. The first one was introduction and management structure of the Reserve Bank of India. The second one was the functions of the Reserve Bank of India, and the third one is a smaller concept as compared to the first and the second videos. This includes the monetary policy management by the Reserve Bank of India. So let us start with the monetary policy management. One of the most important functions of central bank is formulation and execution of monetary policy. Definitely country की monetary policy manage करना उसके central bank का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ड्यूटी होता है. In the Indian context, the basic functions of Reserve Bank of India, as enunciated in the preamble to the RBI Act in 1934, are to regulate the issue of banknotes and keeping of the reserves with a view to securing monetary stability in India and generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage. ये सेम पॉइंट ना गाइज अगर आप लोगों को याद होगा तो ये सेम चीज ना मैंने मेरे पार्ट नंबर 1 वीडियो नंबर 1 में इंक्लूड की थी. तो हमने उसमें देखा था हर एक्ट को ना प्रियम्बल होता है, वैसे ही आरबीआई एक्ट को भी प्रियम्बल होता है. प्रियम्बल क्या बताता है? शॉर्ट में बताता है कि ये कायदे का दायरा कितना रहेगा, स्कोप कितना रहेगा. उन्होंने क्या बताया है? प्रियम्बल में बताया है कि आरबीआई क्या क्या करेगा. बैंक नोट्स इशू करेगा, रिजर्व्स मेंटेन करेगा, मॉनेटरी स्टेबिलिटी मेंटेन करेगा. देखो आ गई ना बात मॉनेटरी स्टेबिलिटी की यहाँ पे. तो जब स्कोप, फंक्शनिंग, एम, ऑब्जेक्टिव ही बता रहा है तो मॉनेटरी स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए एक पॉलिसी तो बनाना पड़ेगा. वो पॉलिसी कौन सा है? मॉनेटरी पॉलिसी फॉर इंडिया. और प्लस क्या करेगा? करेंसी और क्रेडिट सिस्टम भी मैनेज करेगा, लेकिन किसके एडवांटेज के लिए, किसके बेनिफिट के लिए? खुद के बेनिफिट के लिए नहीं, पूरे देश के बेनिफिट के लिए करना है ये. The Reserve Bank's mandate for monetary policy flows from its monetary stability object. जो रिजर्व बैंक का मैंडेट है, मैंडेट मतलब ड्यूटी, कर्तव्य, उसका जो काम करना है वो मॉनेटरी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, लिक्विडिटी, ये मेंटेन करना है, स्टेबल रखना है. ये ऑब्जेक्टिव से वो अपनी पॉलिसी बनाता है. Essentially, monetary policy deals with use of various policy instruments for influencing cost and availability of money in the economy. Cost मतलब मैं जो मनी यूज कर रही हूँ वो मनी प्रोक्योर करने के लिए मुझे कुछ कॉस्ट लगा है क्या. एग्जाम्पल देखिए, अगर मैंने बैंक से कुछ लोन लिया हुआ है तो उस लोन के पीछे जब मैं कोई इंटरेस्ट पे करती हूँ वो इंटरेस्ट ना मेरा कॉस्ट है उस मनी का. एंड अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी मतलब सर्कुलेशन, लिक्विडिटी, ये चीजें भी चीजों के भी स्टेबिलिटी के लिए पॉलिसीज बनाना जरूरी होता है और ये सारी चीजें आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में इंक्लूड की गई है. As macroeconomic conditions change, a central bank may change choice of instruments in its monetary policy. Monetary policy में एक टारगेट मेंटेन करने के लिए आरबीआई ना कुछ मेजर्स लेता है, कुछ चेक्स लेता है, उसे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है. जैसे जैसे उसे ऐसा लगता है, किसे लगता है? आरबीआई को लगता है दैट टारगेट इज बीइंग अचीव्ड और वी आर क्लोजर टू द टारगेट, या फिर द प्रोजेक्टेड टारगेट इज नॉट बीइंग अचीव्ड, तो इट हैज टू मेक सर्टेन चेंजेस in the instruments which it is using, that is the measures and checks and the choices that RBI has made for reaching up to a certain target for achieving a targeted growth. In that case, in this monetary policy, it decides certain instruments, certain measures which RBI will use for efficient achievement of the targeted growth rate. And whenever these conditions in the economy they change, the RBI will definitely have to make changes in its instrument or in those measures which RBI was using to proceed towards the goal.
The overall goal is to promote economic growth and ensure price stability. Okay. Monetary policy refers to the policy of the central government with regard to the use of monetary instruments under its control to achieve the goals specified in the act. एक्ट में है ना कुछ गोल्स दिए हुए, अब हमने देखा गोल्स क्या था, हमने पहले भी पढ़ा। गोल्स क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया की एज ए इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, और प्राइस कैसा होना चाहिए? स्टेबल, मतलब आज हम कोई चीज 50 रुपए की खरीद रहे हैं, तुरंत वो कोई चीज 70 की हो जाए, फिर वो 30 की हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो गोल्स है, ये अचीव करने के लिए जो पॉलिसी सेंट्रल बैंक ने बनाई है उसे मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। The RBI is vested with the responsibility of adopting and implementing monetary policy. RBI के ऊपर ये जवाबदारी है, vested with the responsibility, जवाबदारी दी गई है। Adopt मतलब to prepare, बनाना भी है, क्या बनाना है? Monetary policy. And implement मतलब use भी करवाना है, अप्लाई भी करना है। एंड दिया हुआ देखो, ये दोनों जवाबदारी रिजर्व बैंक की। रिजर्व बैंक ये नहीं बना सकता, बोल सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट भैया तुम बनाओ एंड हम इम्प्लीमेंट करने की जवाबदारी लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। RBI has to prepare this monetary policy as well as apply this monetary policy and ensure that the results are being achieved. ये भैया हमने तो खाली अप्लाई कर दिया, हो गया हमारा काम, ऐसा नहीं है। The responsibility is explicitly mandated under the Reserve Bank of India Act. Explicitly मतलब expressly मतलब assumption के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी है उन्होंने कि भैया आरबीआई की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं, उन्होंने क्लियरली लिखा है इस एक्ट में कि ये आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मॉनेटरी पॉलिसी बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई की, मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की जवाबदारी आरबीआई की, उसमें से नतीजे भी मिलने चाहिए, ये भी जवाबदारी आरबीआई की है। The primary objective of monetary policy is to maintain price stability while keeping in mind the objective of growth. Primary objective of monetary policy क्या है? Price stability maintain करना, ठीक है। मतलब जो हमने ऊपर गोल्स में देखा था, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ स्टेबल प्राइस भी होना चाहिए। प्राइस स्टेबिलिटी इज अ नेसेसरी प्री कंडीशन टू सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो, ग्रोथ हो रहा है, जरूरी नहीं है कि प्राइस भी स्टेबल ही हो, लेकिन प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन हो रही है, डेफिनेटली भैया जरूरी है कि ग्रोथ हो ही रहा है। तो ग्रोथ चाहिए अगर, तो पहले क्या चीज अचीव करनी पड़ेगी? प्राइस स्टेबिलिटी अचीव करनी पड़ेगी, पहले महंगाई पर काबू करना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। देखते हैं फ्रेमवर्क मतलब क्या ड्राफ्ट किया है मॉनेटरी पॉलिसी में। The RBI Act explicitly provides, empowers the Reserve Bank to operate monetary policy framework of the country. RBI Act ने क्या किया है? रिजर्व बैंक को ये पावर दिया हुआ है कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो दायरा है, फ्रेमवर्क मतलब दायरा है, वो दायरा भी मेंटेन करे कि क्या क्या चीजें इस मॉनेटरी पॉलिसी में आती है। अब अगले पॉइंट में हमें देखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य क्या है, एम्स क्या है। The framework aims at setting the policy, that is repo rate, based on an assessment of current and evolving macroeconomic situation and modulation of liquidity conditions to anchor money market rates at or around the repo rate. देखो, एंकर का मतलब आपको पता है क्या होता है? एंकर का मतलब होता है वो इंस्ट्रूमेंट जो एक चीज ना दूसरे चीज में फंसा के उसे अपने साथ खींच के लेके जाती है। आपको पता है शिप होता है, शिप, जब शिप ना कहीं पर स्टॉक किया जाता है तब वो ना जमीन में एंकर डाला जाता है, तो उसे एंकर कहा जाता है। एंकर इज एन इंस्ट्रूमेंट, बड़ा आयन का इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम कहीं पर अगर अटका दे या लटका दे तो वो चीज को सिक्योर करने में मदद करता है। तो मनी मार्केट रेट्स सिक्योर करने के लिए आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या बताता है?
जैसे जैसे इकोनॉमिक सिचुएशंस है उस हिसाब से लिक्विडिटी कंडीशंस मैनेज करनी है। लिक्विडिटी कंडीशंस, अवेलेबिलिटी ऑफ कैश इन द मार्केट, और इसके लिए रेपो रेट असेसमेंट होना बहुत जरूरी है। Repo rate changes transmit through the money market to the entire financial system, which in turn influences aggregate demand and a key determination of inflation and growth. देखो, एक लाइन में समझते हैं पहले रेपो रेट होता क्या है, आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। रेपो रेट मतलब वो रेट होता है जिस रेट पे ना आरबीआई लेंड करती है पैसा। किसको लेंड करती है? दूसरे बैंक्स को लेंड करती है। तो मैं अगर गई बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास और मैंने उन्हें कहा मुझे 50,000 का लोन चाहिए, तो उन्होंने 50,000 कहाँ से लिए होंगे? आरबीआई से। जब ना उन्हें आरबीआई से 50,000 लोन मिले हैं, मतलब बैंक ऑफ महाराष्ट्र की लिक्विडिटी ज्यादा है। जब वो मुझे पैसा दे रहे हैं, मतलब मेरी लिक्विडिटी बढ़ गई। जब मेरे हाथ में पैसा है तो आई कैन परचेज सम गुड्स फ्रॉम इट, आई कैन एक्वायर सम सर्विसेज फ्रॉम इट। इससे क्या हो रहा है ना, when there is more liquidity in my hand, I am generating demand for goods in the market. Why does that happen? That happens because of the changes in the repo rate. Okay. Once the repo rate is announced, operating framework designed by Reserve Bank envisages liquidity management on day-to-day basis through appropriate actions which aim at anchoring the operation target, the weighted average call rate around the repo rate. The operating framework is fine-tuned and revised depending on the evolving financial market and monetary conditions while ensuring consistency with the monetary policy stance. मतलब जो भी बैंक लिक्विडिटी मैनेजमेंट है, ये लिक्विडिटी मैनेजमेंट डे टू डे बेसिस पे मॉनिटर किया जाता है। ओके, मॉनिटर किया जाता है और उसे कंट्रोल किया जाता है। किस चीज पे डिपेंड करके? फाइनेंशियल मार्केट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, मॉनेटरी कंडीशंस में क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये चीजों को ध्यान में रखते हुए ये रेपो रेट मॉनिटर और कंट्रोल किया जाता है। Okay, so here we are starting with instruments of monetary policy. So when we start with instruments of monetary policy, we can understand this as steps in monetary policy. अलग अलग steps है, अलग अलग checks है, अलग अलग measures है, इन्हें हम instruments भी कहा जाता है। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है रेपो रेट। ठीक है, आरबीआई से जब दूसरी बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स बोरो करती है ना, तो उन्हें आरबीआई को कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ये जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है जब आरबीआई से दूसरी बैंक्स बोरो कर रहे हैं, इस इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये इंटरेस्ट लिया जाता है, उस रेट को रेपो रेट कहा जाता है। The fixed interest rate at which RBI provides overnight liquidity to banks against the collateral of government and other approved securities under the liquidity adjustment facilities. ओवरनाइट का मतलब होता है सडनली या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, जल्दबाजी में, तुरंत, ये सब मीनिंग है ओवरनाइट के। मतलब उस रेट पे जिस पे आरबीआई इन बैंक को पैसा लेंड करती है, जब ये बैंक कुछ इंटरेस्ट भी देती है और ये बैंक ना कोई सिक्योरिटी असेट भी रखती है। कोलैटरल, कोलैटरल मतलब संबंधित असेट सिक्योर करना, तब जो इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है ना, उसे रिपो रेट कहा जाता है। नेक्स्ट, सेकेंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज द रिवर्स रेपो रेट. The liquidity interest rate at which Reserve Bank absorbs liquidity on an overnight basis from banks against the collateral of eligible government securities under the LAF. LAF हमने देखा liquidity adjustment facility. Overnight का भी हमने मतलब देखा था suddenly या फिर short term. Okay? अब यहाँ क्या हो रहा है? RBI कर रहा है बोरो, पैसा आ रहा है RBI के पास। किसके पास से? दूसरी बैंक से।
देखो गाइज, मेरी एक बात सुनो। जब आरबीआई दूसरी बैंक्स को पैसा देती है तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। लिक्विडिटी बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। सिमिलरली ना, मार्केट से आरबीआई जब बोरो कर रही है, पैसा अपने पास ले रही है, तो पैसा बढ़ेगा या कम होगा बैंक्स में और मार्केट में? कम होगा। जिस वजह से डिमांड बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। ऐसे में ना, आरबीआई क्या कर रहा है? एब्सॉर्ब कर रहा है लिक्विडिटी, क्योंकि आरबीआई एक फैसिलिटी देता है जिसमें उसे कोई चीज एडजस्ट करनी होती है। वो जो चीज एडजस्ट करनी होती है उसे लिक्विडिटी कहा जाता है। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का एक स्टेप में आरबीआई जैसे पैसा देती है रेपो रेट पे, वैसे ही पैसा ले भी सकती है। मैंने आपको ये बताया आरबीआई ऐसा क्यों करती है। आरबीआई लिक्विडिटी कम करने के लिए पैसा वापस लेती है, लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करती है। ऐसे में जिस रेट तो आरबीआई को बैंक्स को देना पड़ेगा ना जब वो पैसा ले रही है तब, तो उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। ये याद रखना बहुत आसान है। रिवर्स रेपो रेट मतलब वो जो रेपो रेट का उल्टा रहेगा। रेपो रेट बैंक लेती है लोन आरबीआई से, रिवर्स रेपो रेट आरबीआई लेती है लोन बैंक से। जब बैंक लेती है लोन आरबीआई से, तब बैंक पे करती है रेपो रेट, और जब आरबीआई लेती है लोन बैंक से, तब बैंक्स को पे करती है आरबीआई रिवर्स रेपो रेट। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो हम लोग देखो यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट एंड रेपो रेट में भी पढ़े हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो अब हम डिटेल में देखेंगे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होता है। द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कंसिस्ट ऑफ ओवरनाइट एज वेल एज टर्म रेपो ऑक्शंस। देखो, ओवरनाइट मतलब वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, और टर्म रेपो ऑक्शंस मतलब एक स्टेबल ड्यूरेशन के लिए। ये क्या करते हैं? एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी आरबीआई देता है या फिर लेता है। रेपो ऑक्शंस मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल या परचेस करने के ऑक्शन पे, या ऑक्शन पे ये लिक्विडिटी एडजस्ट की जाती है। Progressively, Reserve Bank has increased the proportion of liquidity injected under fine-tuning variable rate repo auctions and range of tenures। मतलब जो रिजर्व बैंक ने रेट, ऑक्शन रेट्स और रेंज ऑफ टेन्योर, टेन्योर मतलब वक्त कितना है, ये दोनों चीजें क्या की है? फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है जो सबके लिए बेनिफिशियल हो, इस हिसाब से चेंज किए हुए हैं। The aim of term repo is to help develop the interbank term money market, which in turn can set market-based benchmarks for pricing of loans and deposits and hence improve transmission of monetary policy। ये टर्म स्टेबल रेपो क्यों किया जाता है? ताकि बैंक्स में जो मनी एक्सचेंज हो रहा है उसमें डेवलपमेंट हो सके, एंड एक बेंचमार्क मतलब टारगेट सेट हो सके कितना लोन और डिपॉजिट बैंक्स ने ट्रांसमिट करना है। Reserve Bank also conducts variable interest rate reverse repo auctions as necessitated under the market conditions। Okay, so the next facility or the next instrument is marginal standing facility। हमने अभी तक कितने देखे? 3 फैसिलिटीज देखे हैं। ये अब हम देख रहे हैं चौथा फैसिलिटी। A facility under which scheduled commercial banks can borrow additional amount of overnight money from the Reserve Bank by dipping into their statutory liquidity ratio portfolio up to a limit at a penal rate of interest। अब देखो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मतलब क्या? स्टैट्यूट के हिसाब से मतलब एक्ट के हिसाब से मिनिमम लिक्विड असेट एक बैंक को मेंटेन कितना करना पड़ता है, क्या रेशियो में करना पड़ता है?
इसे कहा जाता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी के रेशियो के बेसिस पे जब कमर्शियल बैंक्स रिजर्व बैंक से एडिशनल अमाउंट बोरो करते हैं तो उसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहा जाता है। This provides a safety valve against unanticipated liquidity shocks to the banking system. ये statutory liquidity ratio maintain करने से unanticipated मतलब unprogrammed या which is not estimated जिसका अंदाजा पहले से नहीं था, जो contingent थी, जो suddenly liabilities आ गई, इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलता है। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी अगला देखेंगे, हमने कितने देखे, 4 देखे, ये है 5वां, दैट इज कॉरिडोर। ओके, सो कॉरिडोर का बेसिकली मीनिंग होता है मार्जिन। मार्जिन मतलब डिफरेंस, गैप, ये इसे कॉरिडोर कहा जाता है। द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट and reverse repo rate determine the corridor for daily movement in weighted average call money rate. कॉल मनी रेट ना, कॉल रेट ये वो रेट होता है जिसमें ना बैंक्स लेंडिंग करते हैं आपस में टू ईच अदर जब वो लेंडिंग करते हैं तब उसे कॉल मनी रेट कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट इज बैंक रेट। कितने देखे हमने, 5 देखे थे, दिस इज द 6th वन, दैट इज द बैंक रेट। It is the rate at which the Reserve Bank is ready to buy or rediscount bill of exchange and other commercial papers. Bank rate is published under Section 49 of Reserve Bank of India Act 1934, and the rate has been aligned to the MSF rate and therefore changes automatically as and when marginal standing facility rate changes. जैसे जैसे MSF rate change होता है वैसे वैसे बैंक रेट भी change होते रहता है। बैंक रेट क्या होता है ना, बैंक रेट वो रेट होता है जिसमें रिजर्व बैंक कुछ असेट्स या कमर्शियल पेपर्स परचेस करता है जिससे कि लिक्विडिटी बढ़ती है। परचेस करता है मतलब पैसा देता है। ओके, लेकिन जिस रेट पे वो एक्सचेंज करता है ना, या जिस रेट पे परचेस करता है उस रेट को बैंक रेट कहा जाता है। The next, that is the 7th one, that is the cash reserve ratio. Average daily balance that a bank is required to maintain with the Reserve Bank as a share of such percent of its net demand and time liabilities that the Reserve Bank may notify from time to time in the official gazette. Okay, cash reserve ratio, नाम itself, name से ही पता चल रहा है हमें, cash reserve ratio, ये चीजें हमें पता चलती है। रेशियो मतलब उतना क्वांटिटी। ओके, उतना क्वांटिटी क्या करना है बैंक को उतना क्वांटिटी रिजर्व में रखना है, मेंटेन करना है। और किस में करना है, कैश में करना है, मतलब लिक्विड असेट्स में करना है। ओके, सो उतना बैलेंस जितना बैंक को मेंटेन करना ही पड़ता है, लेकिन खुद के पास क्या नहीं, ये किसके पास मेंटेन करना पड़ता है, रिजर्व बैंक के पास मेंटेन करना पड़ता है। देखो जैसे ना, मानो A has gone to the bank to deposit some money. Now the entire amount cannot be kept with this bank. It has to keep a certain amount with the Reserve Bank of India. So that certain minimum amount which the bank keeps with the Reserve Bank of India is its cash reserve ratio. Next is statutory liquidity ratio, जो हमने पहले भी देखा। The share of NDTL देखो यहाँ हमने देखा है net demand and time liabilities that a bank is required to maintain in safe and liquid assets. Again, simple हमें ये चीज याद रखनी है। स्टैट्यूटरी मतलब जो कायदे में लिखा, कायदे में बताया गया है। लिक्विडिटी मतलब कैश या फिर इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट होने वाले एसेट्स। और रेशियो मतलब उतना क्वांटिटी कि एक बैंक को क्या करना पड़ता है, उतना लिक्विड असेट मेंटेन करना पड़ता है, उसे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहा जाता है। नेक्स्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो नंबर 2 देखा है आरबीआई एक्ट का, तो उसमें भी मेंशन किया हुआ है। These include both outright purchase and sale of government securities for injection and absorption
ऑफ ड्यूरेबल लिक्विडिटीज। ओके, मतलब इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल होती है, जब सेल होती है तो पैसा आरबीआई के पास आता है, तो आरबीआई क्या करता है, लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करता है। या जब परचेस करता है आरबीआई, तो पैसा आरबीआई से जाता है, वो क्या करता है, मार्केट में इंजेक्ट करते हैं, मतलब एड ऑन करते हैं। लिक्विडिटी ऐड करना है, लिक्विडिटी कम करना, इसके लिए जब ये एक स्टेप लिया जाता है, उसे ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहा जाता है। The next is market stabilization scheme. This instrument for monetary management was introduced in 2004. Surplus liquidity of a more enduring nature arising from large capital inflows is absorbed through sale of short dated government securities. Cash so mobilized is held in a separate government account. Market stabilization scheme क्या होता है, मार्केट में लिक्विडिटी स्टेबलाइज करने के लिए प्लान होता है। ये भी कंसेप्ट वीडियो नंबर सेकंड में डील किया हुआ है। इसमें क्या होता है, जब एडिशनल लिक्विडिटी होती है ना मार्केट में, वो एडिशनल लिक्विडिटी आरबीआई क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, मतलब अपने पास खींच लेता है। और ये खींचता है किस वजह से, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स जो मार्केट में है, वो मार्केट में सेल करके, मार्केट में जब वो सेल करता है, तो सेल करने की वजह से पैसा उसके पास आता है, तो ये आरबीआई के एक बैंक अकाउंट में एडिशनल मनी रखा जाता है, और वो एडिशनल मनी को मार्केट से कम करने के लिए ये मनी मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम इम्प्लीमेंट किया जाता है। ओके, सो यहाँ ना हमने कितने देखो 7, देन दिस वाज द 8, this was the 9th and this was the 10th। 10 इंस्ट्रूमेंट्स देखे, जो इंस्ट्रूमेंट्स क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हमें बता रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी में स्टेप्स कैसे इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। ओके ओके, सो हमें अब आगे देखना है दैट हमें अब आगे देखना है हाउ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड। मॉनेटरी पॉलिसी ना जब फ्रेमवर्क किया जाएगा, तो कोई लोग रहेंगे, तो उसके लिए एक कमिटी बिठाना पड़ेगा। कमिटी मतलब समिति, कुछ लोगों की समिति होती है ये। तो ये समिति ये कमिटी ना कौन बनाता है, या ये कमिटी में कौन कौन मेंबर्स होंगे, तो ये आरबीआई एक्ट में ही बताया हुआ है। आरबीआई एक्ट के सेक्शन नंबर 45Z बी में बताया हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट may by notification and official gazette constitute the monetary policy committee। सबसे पहली चीज हमें याद रखनी है, कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इस मॉनेटरी पॉलिसी में कौन कौन रहेंगे, आरबीआई के गवर्नर। वीडियो नंबर 1 सेक्शन नंबर 8 में आरबीआई के गवर्नर और बाकी ऑफिसर्स कौन होते हैं, इसके ऊपर डिटेल में ये पार्ट कवर किया गया है, आप उसमें रेफर कर सकते हैं। डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द बैंक, एक ऑफिसर जिसे सेंट्रल बोर्ड ने नॉमिनेट किया है। 3 अदर पर्संस जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ सेंट्रल बोर्ड है, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ये जो लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, पॉलिसी रेट डिटरमाइन करते हैं इन्फ्लेशन टारगेट अचीव करने के लिए। और इनके जो भी डिसीजंस होंगे, वो सारे डिसीजंस बैंक्स पे बाइंडिंग रहेंगे, आरबीआई पे भी बाइंडिंग रहेगा। ओके, सो द नेक्स्ट सेक्शन टॉक्स अबाउट मीटिंग्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। देखो, जहाँ लोग साथ में आएंगे वहां पे मुलाकातें तो होगी ही, और वहां पे मीटिंग्स भी लेनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी प्लानिंग होगी, हर किसी का अपना अपना एस्टिमेट रहेगा, कुछ चीज आगे क्या करना है उसके लिए, बराबर। तो वो बातें सारी एक्सचेंज होके उसमें से टारगेटेड ग्रोथ रेट तक पहुंचने के लिए कुछ प्लानिंग भी होना चाहिए। ये प्लानिंग पूरी तरह से, अच्छी तरह से जो एग्जीक्यूट होने के लिए मीटिंग्स की जरूरत होती है। तो सेक्शन 45ZI ऑफ आरबीआई एक्ट सेज दैट बैंक शैल ऑर्गेनाइज एटलीस्ट 4 मीटिंग्स इन अ ईयर। कितने मीटिंग्स होने चाहिए इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, कम से कम 4 मीटिंग्स होना जरूरी है।
Meeting schedule of Monetary Policy Committee for a year shall be published by the bank at least 1 week before the first meeting for that year. मतलब पहली मीटिंग उस साल में जो भी पहली मीटिंग होगी वो मीटिंग के कम से कम एक हफ्ता पहले साल भर के पूरे साल भर में जो जो मीटिंग्स होने वाली है उसका एक शेड्यूल बनाना जरूरी रहेगा, वो शेड्यूल पब्लिश करना भी जरूरी है। जैसे हमने देखा पूरे साल भर का शेड्यूल ना पहले ही पब्लिश करना होता है, लेकिन इन द इवेंट अगर शेड्यूल चेंज करने की जरूरत पड़े तो क्या प्रोविजन है वो हमें बताता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ने क्या कहा है, मीटिंग शेड्यूल में बी चेंज्ड ओनली। शेड्यूल साल भर का बनाया हुआ है पर जरूरत तो पड़ सकती है ना चेंज करने की, तो वो चेंज करने का तरीका क्या है, बाय वे ऑफ अ डिसीजन टेकन एट अ प्रायर मीटिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। मतलब आज की मीटिंग में अगले मीटिंग का डेट शेड्यूल डिसाइड, या डिसाइड नहीं, डिसाइड तो साल भर का पहले ही हो चुका है, चेंज किया जा सकता है, ये पहला तरीका है। दूसरा, गवर्नर को अगर लगता है कि अरे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीजेंसी, एक्सीजेंसी मतलब अर्जेंसी, कोई अर्जेंट मैटर डील करने के लिए, कोई अर्जेंट मैटर के प्रोसीडिंग के लिए कोई एक एडिशनल मीटिंग, जैसे डिसाइड हुआ है कि साल भर में 8 मीटिंग्स होने वाले हैं, पर एक 9वें मीटिंग की भी जब जरूरत पड़ती है तब अगर गवर्नर के ओपिनियन में वो सच में अर्जेंट है तो वो मीटिंग ऐड की जा सकती है। Any change in meeting schedule shall be published. Shall लिखा हुआ है यहाँ पे which means mandatory provision है, कोई भी मीटिंग में चेंज हुआ है वो भी आरबीआई ने जैसे बाकी मीटिंग्स का शेड्यूल पब्लिश किया वैसे पब्लिश करना जरूरी है। Quorum for a meeting of the Monetary Policy Committee shall be 4 members, at least one of whom shall be governor, and in his absence, deputy governor who is the member of Monetary Policy Committee. कम से कम कितने मेंबर्स होने चाहिए, कोरम मतलब मिनिमम प्रेजेंटी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम अटेंडेंस उतना होना ही चाहिए, उतना अगर अटेंडेंस रहेगा तो ही मीटिंग प्रोसीड की जा सकती है, मीटिंग चालू की जा सकती है, डिस्कशन को शुरुआत किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा है कम से कम कितने लोग होने चाहिए, 4 होने चाहिए, पर कोई भी 4 लोग होंगे तो चलेगा क्या, नहीं, कोई भी 4 लोग होंगे तो नहीं चलेगा, उनमें से एक जन जरूरी है कि गवर्नर होना ही चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है जो 4 मिनिमम लोग मौजूद होने चाहिए वो 4 में से एक गवर्नर की भी मौजूदगी जरूरी है, लेकिन किसी कारणवश अगर गवर्नर मौजूद नहीं रह पाता है तो उनके जगह डेप्यूटी गवर्नर कैन टेक हिज प्लेस, एंड डेप्यूटी गवर्नर प्रेजेंट रहे तो भी सफिशिएंट होगा। The meetings of the Monetary Policy Committee shall be presided over by governor and in his absence by deputy governor. Presided मतलब कौन मीटिंग का प्रेसिडेंट रहेगा, कौन मीटिंग का चेयरमैन रहेगा, कौन मीटिंग को हेड करेगा। गवर्नर will be the person who will head this meeting. In case governor is absent, उनकी जगह deputy governor लेंगे। Each member shall have one vote, that is one member one vote के रेशियो में वोटिंग किया जाएगा। All questions which have come up before any meeting of the Monetary Policy Committee shall be decided by majority of votes by the members present and voting, and in the event of an equality of votes, governor shall have a second or casting vote. मतलब जो भी मैटर्स रहेंगे उसके ऊपर डिसीजन वोटिंग से किया जाएगा, और जिस किसी भी मैटर को, जिस किसी भी पक्ष को ज्यादा वोट्स मिलते हैं, मेजॉरिटी वोट्स मिलेंगे, वो मैटर माना जाएगा डिसाइड हो गया है, चुन लिया जाएगा। लेकिन अगर कभी किसी भी चीज पे इक्वल वोटिंग होता है तो जो गवर्नर होते हैं उन्हें एक सेकंड वोट का ऑप्शन दिया जाता है, इसे कास्टिंग वोट भी कहा जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में if considers necessary convey its views in writing to the Monetary Policy Committee from time to time. सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो अपने जो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड व्यूज है वो भी इस कमेटी को टाइम टू टाइम इन्फॉर्म कर सकते हैं। Vote of each member for a proposed resolution shall be recorded against such member. मतलब कौन से मेंबर ने वोट यस में किया है, कौन से मेंबर ने वोट नो में किया है, फेवर में किया है, अगेंस्ट में किया है, वो उस मेंबर के नाम के आगे रिकॉर्ड होना जरूरी है।
Each member of Monetary Policy Committee shall write a statement specifying the reasons for voting in favor of or against the proposed resolution. जो resolution पे voting ली जा रही है उस resolution के favor में उन्होंने वोट दिया है या अगेंस्ट में उस रेजोल्यूशन के खिलाफ उन्होंने वोट दिया है, इसके लिए कारण देना अनिवार्य रहेगा. The procedure, conduct, code of confidentiality and any other incidental matter for the functioning of the monetary policy committee shall be such as may be specified by the regulations made by the central board. मतलब जो भी जिस किसी हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी रेगुलेट होगी, उनकी मीटिंग्स कंडक्ट होंगे, उनका किस हिसाब से उनका किस हिसाब से उनका उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे रहेगी, क्या क्या चीज़ें वो डिस्क्लोज कर सकते हैं, उसके प्रोसीजर्स क्या क्या रहेंगे, एंड अदर इंसिडेंटल मैटर मतलब और कोई भी रिलेटेड मैटर अगर रहेगा उससे रिलेटेड सारे रेगुलेशंस सेंट्रल बोर्ड बनाएंगे. The proceeding of monetary committee shall be confidential. Monetary policy committee के decisions confidential ही रखने जरूरी है, सीक्रेट रखने जरूरी है, डिस्क्लोज करना अलाउड नहीं होगा. ओके, सो ये हमने देखा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग्स. नेक्स्ट देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट. सेक्शन 45 ZM subsection 1 of the act provides that the bank shall once in every 6 months publish a document to be called monetary policy report explaining sources of inflation, महंगाई क्यों हो रही है ये एक्सप्लेन करने के लिए कम से कम क्या ड्यूरेशन पे बैंक को ये रिपोर्ट पब्लिश करना होता है, 6 मंथ्स में एक बार ये रिपोर्ट पब्लिश करना जरूरी है. एंड फोरकास्ट ऑफ इन्फ्लेशन फॉर पीरियड बिटवीन 6 to 18 months फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन. आज अगर ये डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ है तो इसमें इन्फ्लेशन महंगाई किस वजह से हो रही है और आने वाले 18 महीनों में मतलब लगभग 1.5 साल के अंदर क्या क्या किस प्रकार से इन्फ्लेशन हो सकता है. फोरकास्ट माने अनुमान, अंदाजा, एस्टिमेट लगाना. As per subsection 2 of this section, the form and contents of the report shall be such as may be specified by central board. मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट किस फॉर्म में रहेगा, क्या फॉर्मेट में रहेगा, उसमें क्या क्या चीजें मेंशन होनी चाहिए, ये सब चीजें भी सेंट्रल बोर्ड के कहने पे ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उस हिसाब से फ्रेम करेंगे. ओके, सो this was the video on part 3rd of the Reserve Bank of India Act 1935, and if you have any questions I'll be glad to answer. Thank you.